Namaste everyone, welcome back to Gurugram Real Estate. In today's video, we are going to discuss M3 Forestia West, which is a part of M3 and GIC. GIC is named as full form Gurugram International City as Gurgaon International City, and this is a 150 acres township जिसके बारे में भी discuss करेंगे. Against M3, sorry, we are going to compare a low-rise 3 floor against you can say a very luxury township in Manesar. So a lot of people want to know about this, and if you are a first-time viewer, we do a weekly polls, and in the weekly polls, you guys provide us the choices, and in this one, uh, we have taken your inputs, and out of those 4 inputs, M3 in Forestry Manesar, you can see 40% of the votes finally. And this video is delayed a bit because we were not able to find out the documents. आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा खुला हुआ है हमने. We were not able to find out the proper documentation. Again, delay was also this, and also I wish all of our family, all of our subscribers, the community a very happy Holi. I am making this video on the day of Holi. Holi is basically known, as a आप लोगों को पता होगा होली का दहन होता है which is a sacred fire to remove fear and also the ignorance as well in a way. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप जीएससी में लेने का सोच रहे हैं आपने ले लिया है तो आपका fear of missing out FOMO दूर होगा. Second, the ignorance of buying something like this product where जहाँ पे आपको बोला जा रहा है this is Gurgaon International City where it is exactly in Manesar. तो मानेसर में कोई चीज़ है तो उसको गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी क्यों बोला जा रहा है इंटीग्रेटेड टाउनशिप. वी हैव अ लॉट टू डिस्कस, बट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन केस ऑफ प्लॉटेड कॉलोनी द लेटेस्ट लेआउट प्लान मैंने ये खोला. आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल हैं. आई विल मेक श्योर टू open them up for you guys ताकि आप भी देख पाएँ. And these are the documents we have. So सबसे पहले I will tell you pre-launch हो launch हो कुछ भी हो, if you are buying something and if you are thinking about having something जो आपको help करेगी for your future purposes or even end use or investment, please check out कि ऐश्वर्या में उस चीज़ की information दे रखी है कि नहीं है. ये आपके सामने है. I cannot see the documentation or the master plan or anything that is related to GIC. आपके सामने एक ही डॉक्यूमेंट है जो बार बार खुल रहा है. ठीक है. नाउ यू कैन से अगेन दिस इज अ कोइंसिडेंस और दिस इज समथिंग एल्स. आई कैन नॉट से कि इंटेंशनली है या कोइंसिडेंस है. आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एज यूजुअल. इट्स फॉर यू गाइस टू डिसाइड कि व्हाट एग्जैक्टली विल बी द चीज आपको क्या समझ आ रहा है. सो इन दिस होल एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आई डोंट हैव. हम एमफिल फॉरेस्ट्री का सर्टिफिकेट देख लेते हैं. द सर्टिफिकेट स्टेट्स आपका 140 एकर्स है. 140 एकर्स में अराउंड बोला जा रहा है 37 to 40 एकर्स आपका रेजिडेंशियल टाउनशिप है. एंड उसमें पहला फेज आया है दैट इज इन्होंने फेज 10 नहीं 10 भी करा हुआ. आई डोंट नो द वे व्हाट एग्जैक्टली इज द केस, बट 7.22 एकर्स है जिसमें 7.2 एकर्स में आपके 9 टावर्स हैं एंड 1384 यूनिट्स हैं. तो आप सिर्फ अगर यही देखते हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, you can easily see कि 1384 units and 7.22 means around 190 units per acre. Yes, you heard it correct. 190 units per acre. अगर हम सिर्फ ये डेटा देखते हैं, ठीक है. Now there is स्मार्ट वर्ल्ड का भी वहाँ पे प्रोजेक्ट आया, स्मार्ट वर्ल्ड नेचर स्कूट, जो पूरा 37 to 40 acres है. Definitely we will come to a technical analysis. I have again prepared this document for you guys, and our team has also prepared this full informative document. So आप वो भी देख सकते हैं if you want to. We will discuss all of those things thoroughly. इसमें भी स्मार्ट वर्ल्ड का जो इनकी सिस्टर कंपनी है जिसका फेज 12 आया है, मे बी यू कैन से फेज 1, उसमें 14 टावर्स है. 14 टावर्स में 1214 यूनिट्स है. तो 8.2 एकड़ में 1214 यूनिट्स मतलब अराउंड 150 यूनिट्स. और आपका एम3 फॉरेस्ट्रिया में 1384. तो आप बोल सकते हो अराउंड 1384 प्लस 1200 इज अराउंड 1600 यूनिट्स आपको 15 एकड़ में दिए गए हैं, जो इनका टोटल 37 एकड़ है. अगर मैं किसी को भी बताता हूँ इंस्टेड ऑफ कि फॉरेस्ट स्कीम है या जीआईसी है, मार्केटिंग तो वी कैन डू इन एनी वे ऑफ फॉर्म. अगर आप एमआईसी को मानेसर इंटरनेशनल सिटी को आप गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी बताएंगे मानेसर में जो है, तो आई थिंक
जो भी उसको बिलीव कर रहा है दैट्स ऑन देम, आई बिलीव सो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है या इफ यू आर हमें बहुत अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, रेट्स पे हम आएंगे टेक्निकल एनालिसिस में ऑन, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। एंड अगेन M3 फॉरेस्ट्री हमारे सर आप यहाँ पे देख सकते हैं 7.22 एकर्स फेज 1 आया है, टोटल ओवर जो इनका लाइसेंस है 16.4 एकर्स का है आउट ऑफ 140 एकर्स। I hope you understood this, and let's come to the brochure discussion and all, cause काफी सारी चीजें brochure पे भी बोली गई हैं, and we will see that exactly what we are talking about. So let's say M3 and beyond ordinary, creating lifestyles, crafting lifestyles, real estate में ये है, branded partnerships में ये है, social impact, all those I mean. What do you want to believe in is on you guys. This is what they have stated. Curated one of the finest theme developments, golf theme residences, water theme resort, and theme golf estate को again they have been mentioned that. मैं इसमें आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ. यहाँ पे star का information लिखी नहीं है, but there is a star here which you cannot see. 250 acres, again 337 acres. जहाँ पे भी स्टार आ गया ना उसको रोक के उसको 2 बार पढ़ना इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट उतना लैंड पार्सल नहीं है. So that is what it is. Now GIC का है क्या? What it is GIC? Gurgaon International City, that is actually existing in Manesar, but the name matters, right? Gurgaon International City. So global retail space मिलेंगे आपको, residential मिलेगा, work space commercial मिलेगा, आपको data center industrial मिलेगा. तो बेसिकली इंडस्ट्रियल आ गया, कमर्शियल आ गया, रिटेल स्पेस आ गया, रेजिडेंशियल आ गया एक ही में, तो उसको बोला जा रहा है GIC. अगेन रिपीटिंग, गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी इज द फुल फॉर्म जो मानेसर में है. ठीक है, वेयर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज राउंड द कॉर्नर. फर्स्ट रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ गुड़गांव लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सिटी. करेक्शन स्लैश कट दिस ऑफ मानेसर्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सिटी. ठीक है, फर्स्ट रेजिडेंशियल एड्रेस. So M3M Forestria is the concept जो इन्होंने निकाला है, and to be honest they are trying to kind of you can say get inspired by the concept of DLF Privana in this one, and they mentioned M3M Forestria West. तो 7.7 acres 7.2 acres जो मैंने आपको दिखाया, this is M3M Forestria West, a life curated by nature. बट जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वी डोंट हैव द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग द ग्रीन्स दैट वी नीड टू काउंट, क्योंकि इसका नाम फॉरेस्ट रखा हुआ है, बट आई नो जब तक डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं आ रहा है कितने ग्रीन्स है क्या है वो कुछ नहीं बोल सकते हैं. फॉरेस्ट नाम रखने से, GIC नाम रखने से वी कैन नॉट स्टेट एनीथिंग अंटिल इट इज बीन रिटन ऑन द डॉक्यूमेंट्स और वी हैव द प्रॉपर एश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स. मैंने आपको दिखाया नो डॉक्यूमेंट्स आर देयर. तो फॉरेस्ट्रिया अभी इन्होंने फेज 1 लॉन्च किया वेस्ट. We can call it Forestria, we can call it GIC. अगर true में होता, अभी I cannot see any information. ठीक है, built for a pure theme forest living. I don't believe so. इसमें 20% से ज़्यादा आपके होंगे. So अगर कहीं पे भी for example let's say 10 acres की community है, उसमें 10 acres में आपके 2 acres अगर greens हैं तो उसको forest theme बोला जाता है. मतलब नॉर्मल आपको 15% देना होता है, 15-16%. अगर आप 15-16 से ज़्यादा देके 18-20 दे रहे हैं तो उसको फॉरेस्ट थीम बना दिया जाता है. एंड आई पर्सनली बिलीव सो इसमें उससे ज़्यादा नहीं होगा, चाहे नेम फॉरेस्ट रख दो या कुछ भी रख दो. सो यू गाइस हैव टू बी केयरफुल. एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, आई थिंक मोस्ट ऑफ द गुड़गांव यूजर्स आर नाउ वेरी वेल अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन गुड़गांव. यहाँ पे आपको मानेसर की स्टोरी बना के सेल करी जा रही है. गुड़गांव भी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको मानेसर की स्टोरी सेल करी जा रही है. सोना पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था. एंड दिस इज अब आपको अगेन यू गाइस हैव सीन माय वीडियो. इफ यू हैवंट सीन प्लीज गो एंड चेक आउट द गिफ्ट फॉर एंड यूजर्स वीडियो. उसमें मैंने क्लियरली बोला है असली लाइफ में लग्जरी इज ओपन स्पेस, ग्रीन स्पेस एंड देन एमिनिटीज, और एमिनिटी स्पेस जो निकल के आता है. अब हाउ कैन वी सेल इन मानेसर? सो दिस इज व्हाट दे हैव अगेन across the globe. Nature has become the ultra luxury. This is what I have been talking about from the day 1 of the video. Day 1 से मैं ये बोल रहा हूँ कि ओपन स्पेस, ग्रीन स्पेस मैटर करता है. एमिनिटीज के नाम पे, टाइल्स के नाम पे, मार्बल के नाम पे आपको कुछ भी बेचा जा रहा है. बहुत लोग 2-3 साल से फंसे हुए हैं. दिस इज अनदर ट्रैप यू कैन से, और यू वुड से कि आपको चांस देना है एज एन इन्वेस्टर, यू कैन गो एंड डेफिनेटली टेक द चांस, बट प्लीज फर्स्ट टेक अ कंसिडरेशन. आई थॉट रेट दे आर गिविंग इट अस.
नाउ मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ. I somehow have closed the document, but let me show it to you. ये स्मार्ट पर नेचर स्पोर्ट है, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी. ठीक है, इसका जो लाइसेंस था दैट वाज अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी. हमें अगेन एमसीएम सॉलिट्यूड की बात कर रहे हैं, दीन दयाल है. आई थिंक अब तक तो स्टिग्मा हट चुका है. अ लॉट ऑफ पीपल हैव रियलाइज्ड दैट ट्रुथ. आप लोगों ने अगर वीडियोस नहीं देखी हैं, यू कैन आल्सो चेक आउट. मैं एमसीएम सॉलिट्यूड की वीडियो बना चुका हूँ, मैं दीन दयाल के लिए बहुत बार बोल चुका हूँ. बट दिस इज ऑल्सो अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी. मतलब अफोर्डेबल का इनको लाइसेंस था. अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट दिस इज नॉट द अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी एज पर द अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी. तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग नहीं है. बट ये लैंड पार्सल वॉज अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग का. यू गेट दैट पार्ट. सो जो लैंड पार्सल अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग का है, व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन्स कि आपका लैंड पे लाइसेंस कुछ भी हो सकता है. लाइसेंस लैंड को आप बोल सकते हो दीन दयाल, लैंड को आप बोल सकते हो अफोर्डेबल, लैंड को आप बोल सकते हो अल्ट्रा लग्जरी. उस पर लाइसेंस क्या मिला है, किस पॉलिसी से वो डेवलप हुआ है. तो आपको इन दी एंड ना लैंड की वो देखनी है कि कौन सी पॉलिसी अभी तक लिखा हुआ है अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी. मतलब अफोर्डेबल है ये. अफोर्डेबल में अब उन्होंने लिख दिया दिस इज नॉट अफोर्डेबल, क्योंकि इन्होंने द वे दे आर डिजाइनिंग इट, द वे आर डेवलपिंग इट, तो लैंड तो सेम ही हुआ. अगेन व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस, एमसीएम सॉलिट्यूड में भी लैंड है. अब उसको दीन दयाल बोल दो, अफोर्डेबल बोल दो, कुछ भी बोल दो. आपके अभी जो हम टेक्निकल एनालिसिस में नंबर्स की बात करेंगे, डेंसिटी, ओपन स्पेस पर कैपिटा, एंड आपको क्या कार्पेट मिल रहा है, क्या सारी चीजें हैं, देन यू विल रियलाइज कि लैंड को कुछ भी बोलने से, कुछ भी लाइसेंस होने से नहीं मैटर करता. आपको प्रोजेक्ट में क्या चीजें मिल रही है, प्रोडक्ट क्या है, वो मैटर करता है. So also note these things. These are very important things that I'm talking about. And आप अगर मेरे को first time देख रहे हैं, you can check out my channel. You can also check out the links that have been provided. It will really help you out. ठीक है? Now let's come back to the brochure. Again, forest nature पे बनाया गया है. ये आपको बता रहे हैं कि forest is the luxury. I think I have been stating that from the first video. अब जाके high rise, low rise आप हटा दो. आप green space देखो, open space देखो क्या मिल रहा है, and that is what is. Now wellness is the new wealth. So wellness is the new wealth. Okay, but then why would I have to, kind of buy and monitor for the same thing? Because these are the reasons they have stated. Privacy and no noise pollution. Okay, so as you guys know, M3M is very famous for their marketing. So M3M के जो M3M है ना, 3M है ना, वो तीनों marketing कर दो, marketing, marketing and marketing. Because this product is what exactly that is. मैंने SCDA पे भी वीडियो बनाया है. I've also made a lot of product videos of M3M and Smart Bed. You can go and check it out. अब इधर हमें क्या बोला जा रहा है, सस्टेनेबल लिविंग है, हेल्थ एंड वेलनेस है, प्रिवेसी एंड लो लाइज है, लो नॉइज है, एक्टिव लिविंग है. सो प्लीज टेल मी, कहीं पे भी जहाँ पे इंडस्ट्रीज आपके आसपास है, इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, लेट्स से हम इंडस्ट्रीज अच्छी मानते हैं जो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करती. तभी पॉल्यूशन तो होगा, चाहे नॉइज का हो या एयर का हो. अभी इफ यू गो एंड चेक आउट द सेल्स पिच ऑफ दीज गाइस, व्हाट दे विल टेल यू इज एयर क्वालिटी इज गुड. आपको एयर क्वालिटी बेटर मिलेगी मानेसर में, आपको नॉइज लो मिलेगा. अच्छा, तो अब ये सारे फैक्टर्स जब गुड़गांव के लिए चीज़ों के लिए थे, वो फैक्टर्स पर नॉट अवेलेबल somehow, but then the product that we have to sell in Manesar, these factors are very important for human health. अगर ये सब मेरे को फैक्टर्स देखने हैं तो मैं गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर में रहूँगा ही क्यों यार. if I actually have to see low noise pollution, privacy and all that. And मेरे को, since this is out of Gurgaon, this is not Gurgaon at all. आप इसको GIC बोल लो, आप इसको कुछ भी बोल लो, it's not Gurgaon man. And connectivity सर आपका ये KMT आ जाएगा, पटौदी, रेवाड़ी आ जाएगा, NH आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो तो हर जगह ये बन चुके हैं. So why are you charging 13,000 per square feet because of the brochure and the marketing match? 30,000 per square feet. आपको रेट्स वाइज मैं बोल नहीं रहा, बट इसका रेट 10,000 से ऊपर नहीं बनता है. आई एम स्टेटिंग दिस बिफोर इवन कमिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस. इफ यू आर पेइंग फॉर दिस प्रोडक्ट 10,000 to 10,500 से ज़्यादा, यू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि इसको ऑलरेडी अंडर राइट कर चुके हैं बहुत सारे लोग 10,000 में. अगर आप एज एन एंड यूजर दे रहे हैं, that's your call. You can consult if you want to, but I'm speaking, correctly. I don't want to sell कुछ भी चीज़ें. So pivotal location, no. Forest theme living, probably. Do we have the documents? No. Extravagant lifestyle, no. Sprawling central landscape, maybe yes. Wellness oriented living, maybe yes. Depending on how it goes, वो 7 साल बाद पता चलेगा. 7 साल बाद आप कहाँ, मैं कहाँ, ये वीडियो कहाँ, क्या चीज़ें हो रही हैं. And right in the lungs of Gurgaon.
This has been spoken about as lungs of Gurgaon, Aravali and all that. So I think you guys are very well versed with what exactly Manesar में lungs हैं कि नहीं है या इस जगह lungs है. See my arrow. I'm not even taking the name. इस जगह lungs है या इस जगह lungs है या इस जगह lungs है. ये heart कहाँ पर है? आप वो खुद decide कर लो. Marketing is marketing. There are different things. Pataudi Rewari highway है. That will start. IGI airport will just be 20 minutes away. ओके लाइक मिशली कंप्लीट नहीं हुई आपको मानेसर की स्टोरी सेल करी जा रही है. सोना पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था एंड यू नो दिस इज अब आपको अगेन यू गाइस हैव सीन माय वीडियो. इफ यू हैवंट सीन प्लीज गो एंड चेक आउट द गिफ्ट फॉर एंड यूजर्स वीडियो. उसमें मैंने क्लियरली बोला है असली लाइफ में लग्जरी इज ओपन स्पेस, ग्रीन स्पेस एंड देन एमिनिटीज, और एमिनिटी स्पेस जो निकल के आता है. अब हाउ कैन वी सेल इन मानेसर? सो दिस इज व्हाट दे हैव अगेन. Across the globe, nature has become the ultra luxury. This is what I have been talking about from the day one of the video. Day one से मैं ये बोल रहा हूँ कि ओपन स्पेस, ग्रीन स्पेस मैटर करता है. एमिनिटीज के नाम पे, टाइल्स के नाम पे, मार्बल के नाम पे आपको कुछ भी बेचा जाए. टू IGI आप देख सकते हैं 37 मिनट्स मेरे को दिखा रहा है. 37 मिनट्स. अगर मैं एमथिम सॉलिट्यूड से जाता हूँ जो गुड़गांव के सेक्टर 89 में. Now let me put एमथिम फॉरेस्ट हियर. आपका सेक्टर 11. 51 minutes at this time. Again, ये देख लीजिए आप IGI एयरपोर्ट will be just 20 minutes away. I just showed you on the map. आप सोचिए यार अगर मेरे को एग्जैक्टली यही लेना है या यही चीज़ें यू नो कुछ भी सेल करना है, कुछ भी रेट, अगेन आई मेंशन कुछ भी सेल करना है, कुछ भी रेट, तो मैं कहीं जाके भी रह लूँगा ना यार. एक्सप्रेस वे, हाईवे, ये वो मैं क्यों देखूंगा. एंड ये 20 मिनट्स अवे, 20 मिनट्स अवे आप मेरे को न्यू गुड़गांव से पहुंच के दिखा दो. आप लोग किसी सेक्टर से 20 मिनट्स अवे है, या आप CTR से पहुंच के दिखा दो IGI एयरपोर्ट में 20 मिनट्स अवे. तो दिस इज जस्ट प्लेन मार्केटिंग. You have to understand what exactly is going on. Again, metro has passed. You can go and check out on ground what exactly, how much groundwork has been done for Gurgaon, how much metro work has been done. आप देख सकते हैं कुछ जाके. I will not speak more about that. आपका corporate industries है, बहुत सारी थीम है. Now let's come to the forest theme living. इनका जो concept है, the life at Amtham Forestry West, the journey where lifestyle flow at once, 1900 to 2000 square feet expensive greens and address with nature. So is the AQI better than Sona? Is the AQI better than Gurgaon? I don't think so. That's a lot of difference. Is the noise pollution less? I would say a little less. And are the roads better? Yes, the roads and connectivity is decent. But does that mean the 13,000, 12,500 rate justifies? क्योंकि 10,500 होना चाहिए था. That's your call to take. Homes that open to nature. Now again, I could say to you, कि हाँ ऐसा होगा, ये ऐसे ही बनेगा. I'm telling you, Ashara में we cannot see paperwork. Ashara में we cannot see paperwork. Extravagant clubhouse, club lifestyle, ये आपको दिखा रखा है, ये ऐसे दिखेगा. Again, you can go and check out Uber luxury products के भी मैंने वीडियो बना रखे हैं. The way I proceed with things, आप देख सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं. ये आपको ऐसे दिखा रखा है. This would be the club house, this would be the gymnasium, आपका jacuzzi, yoga room. हमारे पास क्या रिटर्न में है, ये सारी चीज़ें ऐसी होंगी. सेंट्रल लैंडस्केपिंग. नाउ दिस इज समथिंग जो अभी भी बोला जा रहा है कि 10 to 12 एकर्स के सेंट्रल ग्रीन होगा, उसमें लैंडस्केपिंग होगी. आपका डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे. सेंट्रल ग्रोव बोला जा रहा है इसको. सेंट्रल ग्रोव होगा जो एक पार्क होगा आपका 10 to 12 एकर्स का, जिसमें आपका वाटर पार्क भी होगा, आपके नेचर्स डैन होगी, बहुत सारे स्पेसेस होंगे. सो यू हैव टू सी, डू यू थिंक सो दिस वुड बी देयर, एंड विदाउट द डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट देन यू कैन गो फॉर इट. आपका वेयर नेचर पेंट्स इट्स ओन मिरेकल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बर्ड्स हियर कि हमें यहाँ पे ऐसे बर्ड्स मिलेंगे एंड न्यू कलर्स आपको दिखेंगे, नेचर होगा. नाउ 200 प्लस पीसेज ऑफ ट्री, इज दिस अ पॉजिटिव थिंग? यस, आई वुड से इट इज अ पॉजिटिव थिंग. अगर 200 प्लस स्पीसीज होते हैं ट्रीज के फॉरेस्ट्रिया थीम में, इट इज अ प्लस. बट ये सब मुझे देखने के लिए, चीज़ें समझने के लिए जो ब्रोशर्स पे लिखी जाती हैं, डू आई हैव द डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट? नो, आई डोंट हैव दैट. अ प्लेस दैट एड्स 10 years to your life. First of all, in India, Delhi NCR, after having the bad AQI, still has the highest life expectancy all over the India.
दिल्ली नंबर 1 पे या सेकंड पे केरला है, या दोनों 1-1 पे है, केरला एंड दिल्ली, जिसमें 75 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अब 10 ईयर्स ये लोग और ऐड कर रहे हैं। तो पहले द वी नो द EQI खराब क्यों हुआ, अब मैं उस पर नहीं जाऊँगा, बट EQI खराब के बाद हमें 10 साल और बेचे जा रहे हैं कि 10 साल हम आपकी लाइफ में बढ़ा देंगे 10 ईयर्स, बिकॉज वी हैव टू सेल आउट स्टफ। 10 साल आपको लाइफ आप ज़्यादा जी सकते हैं एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, या आप बोल सकते हो सारा इंडस्ट्री का कॉरिडोर है। और चॉइस इज योर्स। बाय द वे, आपको 3 BHK जो 2.5 CR का है, DLF का 3 BHK 1.6 1.7 CR में मिल सकता है। DLF का भी वहाँ पे एक प्रोडक्ट है, आई एम टेलिंग यू दिस। बट हमारा आज का वीडियो इज अगेंस्ट M3 Solitude, which is actually a part of Gurgaon, which is actually at a very good location। एंड बाकी आप देख सकते हैं जॉगिंग एंड साइकिलिंग ट्रैक, अ हेवन फॉर एवरी जनरेशन, किड्स प्ले एरिया। सी ब्रोशर को मैं 70 पेजेस भी कर सकता हूँ, 80 पेजेस भी कर सकता हूँ। गार्डन प्लाजा, ऑर्गेनिक फार्म, बॉन फायर, पैट पार्क, वाटर कैस्केड्स, दिस इज फॉर सेंट्रल प्लाजा, सेंट्रल ग्रीन्स, एंड दिस इज द वे। अब आप प्राइस एंड पेमेंट प्लान पे आ जाते हैं। अगेन 13,500, आप 1000 रुपीज ज़्यादा दे रहे हैं सबवेंशन में। सबवेंशन फॉर मी, आई डोंट लाइक टू यूज द वर्ड स्कैम, आई डोंट लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, बट अगर आप सबवेंशन प्लान के बारे में जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे, लोगों के साथ क्या हुआ जो M3 वाले ही थे या जो पुराने जिन्होंने सबवेंशन प्लान लिया था, यहाँ पे लिखा है सबवेंशन इज ओनली फॉर 3 years। सो आप समझ सकते हैं जाके चीज़ें व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन एंड व्हाट एग्जैक्टली गुड़गांव मार्केट इज डूइंग। जब गुड़गांव मार्केट में लोग 2-3 साल से दे आर नॉट एबल टू एग्जिट, डू थिंक सो हमारे सर में यहाँ पे देयर इज अ चांस फॉर यू गाइस। 12,500 अंडर CLP, बेस BSP PSC एंड अदर चार्जेस भी लगेंगे इस प्राइस में। डू यू गेट दैट? डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? ये इसका मास्टर प्लान है, आप देख सकते हैं। M3 फॉरेस्ट्रिया ईस्ट को बता रखा है कि हम 1000 रुपये स्क्वायर फीट महंगा लाएंगे। सैन एंड्रयूज है, अगेन आपने सैन एंड्रयूज का आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे है सैन एंड्रयूज ऑलरेडी, एंड वो भी बोल रहे हैं लाएंगे 20,000 पे। M3 फॉरेस्ट्रिया साउथ है, साउथ में आपके लगा लो आप 7 टावर्स और आएंगे। 20 टावर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। यहाँ पे आपका ईस्ट में भी टावर्स 8 से 10 आएंगे। 7-9 टावर्स आर ऑलरेडी लॉन्च जो आपके फॉरेस्ट्रिया वेस्ट में है। देन एंड्रयूज के आपके 3-4 टावर है, क्लब है। दिस वुड बी अराउंड 26 to 27 acres जो आपको मास्टर प्लान दिखा रखा है। 26 to 27 acres में वी वुड एक्चुअली हैव around 20 towers or maybe more towers, जिसमें 9 already launched हैं। So keep this in mind। अभी हमारे पास एशरा की information नहीं है, but whatever we have done with the research, this is what I have got with the information part। A3, A4, A5, A2, A1, आपके ये 9 टावर्स हैं, ठीक है, ये जो आपको दिखा रखे हैं। आप इसमें आपको ये फॉरेस्ट नहीं देख के बहुत कुछ अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अभी हम आते हैं फ्लो प्लान। यू वुड आस्क मी, आई वुड से दीज आर ओके फ्लो प्लान्स, these are not bad flow plans। and आप देख सकते हैं if you want to, again these things, these offers, these subvention plans, I will not say that, but आपको खुद समझदार होना चाहिए why these offers are there। एंड ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मिलती आई है कि नहीं मिलती आई है, जो अब एक एक सिंगल चीज़ करके आपको दिखाया जा रहा है एज अ मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए जिसका लैंड पार्सल है, जिसको बेचना है, ठीक है। डोंट मिस दिस। हम M3 सॉलिट्यूड के ब्रोशर पे आ जाते हैं। M3 पे सॉलिट्यूड का ब्रोशर we have already discussed it, so we will do it very fine। Solitude, step into the realm of living the soulful way, a perfect ecosystem जिसमें आपको सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड इट्स अ रेडी टू मूव नाउ, आपका ऑलमोस्ट चीज़ें हैं, आप जाके देख सकते हैं। देर आर सम इश्यूज जो एंड यूजर्स आपको बताएंगे। यू कैन गो एंड चेक आउट दिस होल थिंग, आप जाके देख सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर द करंट इश्यूज। और M3 और स्मार्टफोन ने जो बोला था, आर दे एबल टू गिव यू दैट एक्सपीरियंस। इसमें प्लेसमेंट भी है। दीन दयाल इज अ स्कीम दैट यूज्ड टू बी देयर बाय गवर्नमेंट, जिसकी वजह से लैंड सस्ता मिलता था। लैंड की वजह से आपको प्राइसेस थोड़े ठीक मिल जाते थे। अगेन मैंने आपको अफोर्डेबल का दिखाया। नाउ दीज थिंग्स दैट हैव बीन सेड ऑन द ब्रोशर्स, कैन यू गो एंड चेक इट आउट ऑन द रियलिटी, आपको क्या मिला है या क्या नहीं मिला है। ये इनके फ्लो प्लान्स है। दिस इज व्हाट इट इज विद M3 सॉलिट्यूड। इसको मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस में डिटेल में बता रखा है, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। लेट्स कम टू द टेक्निकल एनालिसिस। सो पहले हम M3 GIC के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है ये। लेट्स से Gurgaon International City, marketed name, located in Manesar. Funny, but that is what the reality is.
my reference name would be Manesar International City, MIC. It's not Gurgaon. टाउनशिप 140 प्लस एकर्स की है, रेजिडेंशियल एलोकेशन 37 टू 40 एकर्स है, जिसमें M3 जो फॉरेस्ट्री है 26 टू 27 एकर्स है, स्मार्ट वर्ल्ड का जो आपका नेचर स्कोप है वो 10 टू 13 एकर्स है. नॉट द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप इन गुड़गांव, नो. आप अगर इंडस्ट्रियल भी जोड़ते हो मे भी हो सकता है, बट आई बिलीव सो इससे बहुत बड़ी बड़ी टाउनशिप है. ठीक है. सेकेंड, फेज 1 फॉरेस्ट्रिया का टोटल एरिया आपको जो 16.4 एकर्स एचएरा में भी रजिस्टर्ड है, जिसमें आपका फेज 1 आया है. 7.23 एकर्स में टावर्स 9 है, S+35, S+38 है, 4 अपार्टमेंट्स पर 4 है, 1384 यूनिट्स है. तो यूनिट्स पर एकड़ कितना निकल के आया? 190 प्लस यूनिट्स पर एकड़. ओपन स्पेस इसमें 80% क्लीन किया जा रहा है, इसमें 75% है बिकॉज ऑफ मोर टावर्स. ओपन स्पेस पर कैपिटा इसका निकल के आता है. प्लीज गो एंड चेक आउट माय वीडियो गिफ्ट फॉर एंड यूजर्स. 42.6 स्क्वायर फीट पर पर्सन. अगर मैं ये मानता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये मानता हूँ कि इतनी ही डेंसिटी रहने वाली है, ऑफ कोर्स इतनी रही नहीं रहेगी, उस पर मैं आपको दिखा देता हूँ उसका भी एनालिसिस. हम मानते हैं कंफर्म्ड एंड एस्टिमेटेड नंबर्स हैं अभी. लेट्स से फॉरेस्ट्री वेस्ट इज 7.23 एकर्स, 1384 यूनिट. स्मार्ट वर्ल्ड का जो फेज 1 है नेचर स्कूल 8.28 एकर्स है, जिसमें 1214 यूनिट्स है. टोटल यूनिट्स आपके हो गए 15.51 एकर्स में 2598 यूनिट्स. 167 यूनिट्स हो गए ऑलरेडी 15 एकड़ में. अगर हम बोलते हैं 37 एकर्स की टाउनशिप है, जिसमें आपका 10 से 12 एकड़ का ग्रीन एरिया है या सेंट्रल ग्रीन है या जो भी सेंट्रल प्लाजा है, whatever name you want to give, तो हम बोल सकते हैं 27 एकर्स हैं टोटल. 27 एकर्स में 15 एकड़ में आपके 2598 यूनिट्स ऑलरेडी हैं. अगर आप बोलते हो बाकी के 12-13 एकड़ में भी इतने ही यूनिट आते हैं, तो 5000 यूनिट पहुंच गए. 5000 यूनिट का मतलब हो गया 120 से ज्यादा एकर्स की डेंसिटी है. सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फुल 37 एकड़ सिनेरियो, एस्टिमेटेड कैप है 4000 यूनिट्स. हम मानते हैं कि 4000 से ये लोग ज्यादा नहीं ले जाएंगे. अगर 4000 से ज्यादा ले जाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि 5000 यूनिट्स भी हो सकते हैं, बट 4000 में भी जो लग रहा है 99% एटलीस्ट 4000 यूनिट होंगे 37 एकर्स में. दैट मीन्स 108 यूनिट्स पर एकड़ निकल के आता है. अभी आप 108 से 120 बोल सकते हैं कि इतने यूनिट्स पर एकड़ इसमें आ सकते हैं 37 एकर्स में, जिसको आपको जीआईसी बोल के सेल किया जा रहा है जो मानेसर में. ओपन स्पेस हम आते हैं अभी प्रॉपर उस पर. तो ओपन स्पेस पे भी हम बात करेंगे. 75% इज द मैक्सिमम आई बिलीव कैन बी देयर, बिकॉज ईस्ट और साउथ में भी बहुत प्लेसेस आएंगे. बट सैन एंड्रियूज के टावर है 37 एकर्स में. अभी मैं बना रहा हूँ 29 से 30 टावर होंगे. यू नेवर नो, 30 टावर से भी ज्यादा जा सकता है. ऑलरेडी दे हैव लॉन्च 20 प्लस टावर्स ऑलरेडी. And if you ask me what is possible, anything can possible with M3 and Smart World. And if you believe in Astera, if you believe in RERA, मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए RERA is good, but if you actually believe RERA is very powerful, you can go and check out the statements that have been given by the courts, High Court and Supreme Court. You can also check out Astera के बाकी प्रोडक्ट्स का क्या होगा. Now this is your call. ओपन स्पेस और एमिनिटीज आप देख लेते हैं. 12 एकड़ सेंट्रल ग्रीन बोला जा रहा है. Is that the case? I don't know. 2 लाख स्क्वायर फीट क्लब हाउस बताया जा रहा है. दैट मीन्स अराउंड आप मानो 4 एकड़ में क्लब हाउस है. अगर 4 एकड़ में क्लब हाउस है, 10 से 12 एकड़ आपका ग्रीन है, तो आप सोचो कितना आपका ओपन स्पेस निकल के आएगा. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 75%. एंड इसमें हाई स्ट्रीट मार्केट और जो मॉल है वो बाकी के 100 एकर्स में है, जो इंडस्ट्रियल जो भी इनका ग्रोथ होगी. नाउ कैन यू सी मी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ 3 to 5 years? No. Can I say this is a picture of 10 plus years? Probably yes. Do I think ये सब बन के मिलेगा आपको 15 साल में? Yes. तो गुड़गांव की स्टोरी अभी कंप्लीट हुई नहीं है. बोला जा रहा है मानेसर में ये जो जीआईसी है ये गुड़गांव जैसी होगी, या गुड़गांव की स्टोरी कंप्लीट करेगी. डू यू गाइस थिंक सो गुड़गांव की स्टोरी अभी कंप्लीट हो गई है, या अभी आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और दिखती है, या आपको मानसून में कुछ और दिखा? इज दिस द एग्जैक्ट थिंग दैट यू गाइस हैव सीन, जो आपको बोला जा रहा है ऑन पेपर, जो परसीव्ड वैल्यू बताई जा रही है? एंड अगर मेरे को परसीव्ड वैल्यू नेचर के नाम पे सेट करनी है, तो मैं आप मेरे से आके हिमाचल में प्लॉट ले लो यार. इफ यू गाइस आर दैट इंटरेस्टेड इन बीइंग अ पार्ट ऑफ नेचर, यू कैन कनेक्ट विद मी. सो डॉक्यूमेंटेशन स्टेटस पे आते हैं. 84 मीटर रोड से है, हाई स्पीड है, 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस. अगर आप 40 एकर्स के पास भी लगाते हैं, यू कैन गो एंड चेक आउट माय गिफ्ट फॉर एंड यूजर्स वीडियो. उसके हिसाब से एमिनिटी स्पेस पर कैपिटा निकाल लेना, आपको 2 लाख स्क्वायर फीट क्लब हाउस का कितना निकल के आएगा 4000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग से. 12 एकड़ ग्रीन्स है, आपका 2 लाख स्क्वायर फीट क्लब हाउस है. ये कोई भी कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है. मार्केटिंग नैरेटिव से आप दूर रहिए. 13,000 12,500 में मैं आपको इससे एटलीस्ट 10 बेटर प्रोडक्ट्स न्यू गुड़गांव में मैं आपको बता सकता हूँ.
जो उसको टाउनशिप को बोला जा रहा है 37-40 एकर्स में, 10 बेटर प्रोडक्ट्स बता सकता हूँ जो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर जेंट्री उन जगहों पे आपको मिलेगी. मार्केट पोजिशनिंग नाउ, ऑल्सो कंस्ट्रक्शन इज नॉट कंफर्म, हाइब्रिड है, फाइबर है, क्या है. आई थिंक प्रोबेबली देयर इज अ चांस हाइब्रिड होगी. मार्केट पोजिशनिंग है 25,000 स्क्वायर फीट. पोजिशन नैरेटिव है कि आपको पता है वीडियो नैरेट हुए थे जिसमें 25,000 आप मेरे से आके ले लेना. अगर 50 लोग वहाँ पे बैठे हैं, 50 लोगों को बोल दिया है कि जो कि ब्रोकर्स या डीलर्स ही हैं कि आप 25,000 में आके ले लेना 6 साल बाद, वहाँ तब की स्टोरी तब देखी जाएगी ना. और वो 50 लोग की बात हो रही है, 100 लोगों की बात हो रही है. क्या आपको एज एन एंड यूजर अगर आप ले रहे हैं, आपको 25,000 में वापस मिल रहे हैं, उनसे बोलो लिख के दे दें, वी विल बाय दैट, सिंपल एज दैट. एंड जो भी एंड यूजर अभी ये वीडियो देख रहा है, इफ यू आर सर्चिंग फॉर दिस, यू कैन कनेक्ट विद अस एज वेल, वी विल प्रोवाइड यू द राइट थिंग. ठीक है, हम कंक्लूजन पे बाद में आ जाते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लानिंग, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स कंपेयर द कंपैरिजन. आप देख सकते हैं एमसीएम सॉलिट्यूड के मैंने डाला है, क्योंकि एमसीएम सॉलिट्यूड पे अब तो नहीं बोल सकता मैं, बट पहले दीनदयाल के अगेंस्ट बहुत स्टिग्मा क्रिएट किया गया था. लाइक अगर दीनदयाल बोल रहे हैं और अफोर्डेबल बोल रहे हैं, तो अफोर्डेबल को दीनदयाल से बेटर दिखाया जाता था इन अ वे. तो अगेन मैंने आपको जो बताया, लैंड होता है, उस पर लाइसेंस कुछ भी ले लें, कैसे भी बना दें, मैटर करते हैं आपके 3 चीजें, जिसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं जाके. एमसीएम सॉलिट्यूड क्योंकि एमसीएम का प्रोडक्ट है, दिस इज द कंपैरिजन. सेक्टर 89 मानेसर कॉरिडोर में है, मानेसर M10, M9, M10, M11. M11 में आपके है मानेसर के सेक्टर में. दीनदयाल लो राइज है, हाई राइज इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जो पहले अफोर्डेबल हाउसिंग के लाइसेंस पे थी. टोटल रेजिडेंशियल लैंड 49 एकर्स है, यहाँ 37 एकर्स है. आपका रेजिडेंशियल का है पार्ट ऑफ 140 एकर्स. ठीक है, पोजेशन रेडी, एक्टिव, अंडर डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स अंडर कंस्ट्रक्शन. ये 3-4 मंथ्स पहले लॉन्च हुई है. रेडी है, एक्टिव है, फंक्शनल इंटीग्रेटेड है, क्लेम्ड एंड इवॉल्विंग है. नाउ कमर्शियल चीज़ें जो बोली जा रही हैं, अगेन कोई किसी को कुछ नहीं बता सकता until and unless you guys see what exactly is the narrative going on in the market. गुड़गांव की मार्केट में भी आप क्या चल रहा है पहले वो चेक कीजिए, लेट अलोन भी मानेसर. ठीक है, ये आप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. अभी जो चीज़ें लॉन्च हुई है उसकी डेंसिटी 160 निकल के आती है. प्लीज गो एंड ऑल्सो चेक आउट द SCDA वाला वीडियो भी, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट का. यू विल नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर हम मानते हैं 37 एकर्स का है, आपको मेरे हिसाब से 37 to 40 एकर्स के हिसाब से भी 108 से 120 यूनिट्स पर एकड़ रहने वाले हैं, जिसका ओपन स्पेस पर कैपिटा निकल के आता है, इफ यू काउंट दैट, 75 स्क्वायर फीट पर पर्सन. 75 स्क्वायर फीट पर पर्सन. आप अब मुझे अगर बोल रहे हैं ओपन स्पेस 75 स्क्वायर फीट पर पर्सन है मानेसर में, जहां पे आपको 13,000 रुपए की टिकट प्राइस में कोई चीज दी जा रही है, जिसमें आपको कैपिटल ग्रीन या सेंट्रल ग्रीन या व्हाटएवर ग्रीन दे हैव मेंशन, जो डॉक्यूमेंट्स पे भी प्रूफ नहीं है, वी कैन नॉट सी द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज योर कॉल टू बी. आपको मैं सॉलिट्यूड का बता देता हूँ. सॉलिट्यूड की डेंसिटी 75 यूनिट्स पर एकड़ है. यहाँ पे आपको मैंने क्या बताई डेंसिटी, 108 से 120 यूनिट है हाई राइज. अगेन हाई राइज में आपकी 108 से 120 यूनिट्स है. यहाँ आपको सॉलिट्यूड में 75 यूनिट्स पर एकड़ है. ओपन स्पेस पर कैपिटा 62 स्क्वायर फीट पर पर्सन निकल के आता है, और इसको आप 30% बढ़ा सकते हैं बिकॉज इसमें बेसमेंट और शेड टेरेस है. तो 62 हटा लगा के आप अगर 20% भी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो इससे ज्यादा आएगा. यू कैन कनेक्ट विद मी इफ यू वांट टू नो मोर. बट ओपन स्पेस पर कैपिटा, एक ब्रीदेबल स्पेस एक इंसान को किस में ज्यादा मिलेगा, हाई राइज में, अगेन रिपीटिंग माय पॉइंट, या लो राइज में. रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. 75 to 80 स्क्वायर फीट आपको सॉलिट्यूड का ओपन स्पेस पर कैपिटा निकल के आता है. योर कॉल, योर अंडरस्टैंडिंग, बट दिस इज व्हाट इट इज. लैंड एरिया मैंने आपको बता दिया 3720 यूनिट्स है. अगेन 49 एकर्स में 3720 यूनिट्स है. यहाँ 37 एकर्स में एटलीस्ट 4,000 यूनिट्स होंगे, इफ नॉट मोर, 5,000 भी हो सकते. यूनिट्स पर एकड़ 10875. पॉपुलेशन आप देख सकते हो. एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, अगर कोई एक्चुअल में गुड़गांव इंटीग्रेटेड सिटी है ना, जो रेजिडेंशियल के लिए है, दैट इज शोभा इंटरनेशनल सिटी. 39 एकर्स में यू हैव 1500 यूनिट्स. इन्होंने 7 एकड़ में 1500 यूनिट्स निकाले, जिसको बोला जा रहा है GIC. गो एंड चेक दैट आउट. एंड एक्चुअल गुड़गांव इंटीग्रेटेड सिटी, अगर एक्चुअल में किसी को नाम देना है, वुड बी प्रेवाना एज एन इकोसिस्टम, इफ यू गाइस वांट टू चेक आउट. और
देर आर बहुत सारे लैंड पार्सल्स है, आपको कब से बोला जा रहा है लैंड पार्सल नहीं है। 150 to 200 एकड़ सिग्नेचर के पास है SPR पे। यू guys already know about Privana कितना बड़ा लैंड पार्सल है। You guys know about the commercial space. You guys also know द्वारका एक्सप्रेसवे में किसके पास कितना लैंड पार्सल है इंक्लूडिंग एलान। सो हमारे पास अगर लैंड नहीं है एंड प्राइसेस इतने जाने हैं तो बाय कौन कर रहा है अगर एंड यूजर समझदार है। सो मैं आपको बता देता हूँ GIC में लेट्स से अगर टोटल 100 यूनिट्स है, 100 में से 90 यूनिट्स, आई एम स्टेटिंग दिस, 90 यूनिट्स उन लोगों के पास है जो एंड यूजर्स नहीं है। नाउ दिस इज योर कॉल, आपको किस किस को डालना है। 10 यूनिट्स वो एंड यूजर्स है जिनको कुछ पता नहीं है, जो जाके ले लेते हैं। जो सो अगर ये आप 75 स्क्वायर फीट जो निकल के आया ओपन स्पेस पर कैपिटल, अगर ये 150 या 140 स्क्वायर फीट पर स्पेस होता ना आपका कैपिटल, आई कुड हैव इजीली सेड टू यू कि हाँ स्टिल अ डिसेंट प्रोडक्ट। तब भी 13,000 के लिए मैं आपको बोलता कि 13,000 इज टू मच या 12,500 इज टू मच फॉर मी। 10-10,500 से ज्यादा नहीं बैठता है द प्राइसिंग, द करेक्ट प्राइसिंग। प्लस दिस ओपन स्पेस पर कैपिटल डजंट इवन जस्टिफाइंग बाइंग देयर। अगर आप जा रहे हो पीस के लिए जा रहे हो, ब्रीदिंग स्पेस के लिए जा रहे हो, आपके पास नहीं है whatever the pricing is, प्राइसिंग आप हटा ही दो, आप लोकेशन भी हटा दो। आपको ये जो 75 मिल रहा है हाई राइज में, मतलब अपने फ्लैट के अलावा आप कहीं जा ही नहीं सकते हो, आप नीचे जाओगे आपको लोग ही लोग मिलेंगे। 75 इज नॉट अ गुड नंबर, अंडरस्टैंड दिस इन हाई राइज। सो फ्लोर प्लान पे हम आ जाते हैं। क्रिटिकल इंसाइट, इफ GIC truly caps at 4,000 units, density becomes moderate high, not extreme. Open space per capita becomes respectable. I won't say it's respectable, but ठीक है, becomes understandable. रिस्पेक्टेबल इज नॉट द राइट वर्ड। यू कैन नॉट रिस्पेक्ट। मानेसर में आपको एक टाउनशिप दी जा रही है जिसमें आपको 75 स्क्वायर फीट ओपन स्पेस पर कैपिटा मिलेगा एंड मे बी इट कैन गो वेरी लो। यू कैन ऑल्सो सी SCDA का क्या आया था, व्हाटएवर आई डिस्कस इन द वीडियो, वी कैन लुक इनटू दैट। तो डेंसिटी आपकी अभी हम बोल रहे हैं 120 140 भी हो सकती है, वी डोंट नो। स्ट्रेटेजिक समरी हम ले लेते हैं। सॉलिट्यूड में रेडी इकोसिस्टम है, कंट्रोल डेंसिटी है, लो राइज है, एक्सक्लूसिविटी विद योर बेसमेंट एज वेल, फंक्शनल कमर्शियल है, प्रूवन रीसेल मार्केट है। GIC में लार्ज टाउनशिप है, वाइड रोड्स है, हाई राइज की अपील है, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कॉरिडोर ग्रोथ। फाइनल टावर कितने भी हो सकते हैं, डेंसिटी सेंसिटिव टू फ्यूचर फेजेस, अमेनिटी क्लेम्स नीड पोजीशनिंग राइट। सो यू नो फॉर मी इट्स अ हाई राइज अर्बन ब्लॉक, आई कैन नॉट से। हमारा लास्ट चीज रह गई है टू डिस्कस अबाउट द कारपेट एरिया एंड ऑल दैट। लेट्स कम इनटू दैट फ्लोर प्लान कंपैरिजन। यू गाइस नो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस। 1485 का साइज है आपका, 1423 लिखा हुआ है बट इट इज 1485। उसमें कारपेट आपका 825 है, एमथिन सॉलिड में बैल्कनी 160 to 165 है डिपेंडिंग ऑन द यूनिट। बेसमेंट आपका 200 का है। 990 आपका एमथिन फॉरेस्टिया, 1000 अराउंड 1000 to 1020 कारपेट एरिया है, 320 बैल्कनी में। तो इसका जो फ्लोर प्लान है हम आज आप देख सकते हैं ये फ्लोर प्लान। इसमें कारपेट एरिया आपका 1000 है, वी विल डेफिनेटली कंपेयर। और आपका जो बैल्कनी है वो 320 है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैल्कनीज है इसकी। आई लाइक बड़ी बैल्कनीज। इट्स अगेन फ्लोर प्लान वाइज आई सी इट एज अ डिसेंट फ्लोर प्लान, बट आपको शायद सही ना लगे बिकॉज ऑफ द लोअर कारपेट एरिया एंड मोर बैल्कनी। तो दैट इज योर कॉल। 1900 के साइज में बेसमेंट भी है 200-200 का। तो टोटल प्राइवेट यूजेबल एरिया आपका एमकेएम सॉलिट्यूड का निकल के आता है 1190 और 1200। यहाँ पे आपका 1909 में निकल के आता है 1320। लोडिंग निकल के आई 32%, जिसको सबको लोडिंग जाननी होती है। सुपर लोडिंग आपकी यहाँ पे निकल के आती है 36% M3M में। अगर आप काउंट नहीं करते हो कि आपका बेसमेंट है, अगर आप बेसमेंट काउंट करते हैं तो 25% की निकल के आती है। नाउ बेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ कारपेट एरिया जो यूजेबल एरिया मिल रहा है, बट दैट्स योर कॉल टू टेक। आई थिंक दिस इज गुड एनफ। नाउ लेट्स डिस्कस द फ्लोर प्लान। सी सबसे पहले वी विल कंपेयर आपका ड्राइंग एंड लाइनिंग। First of all, people would be thinking, you know, in a way, not people, but some of you guys would be thinking कि हम low rise और high rise से क्यों compare कर रहे हैं। Ultimately, it's a flat, it's an apartment, it's something, you know, जिसके अंदर आप रहेंगे। ये भी 3 BHK है, वो भी 3 BHK है M3 फॉरेस्ट्री में। मैंने आपको बता दिया आपका यूजेबल एरिया का फर्क 100 से 120 है, और 120 में शेयर टेरेस नहीं काउंट कर रहा हूँ। आप एक जगह जा रहे हैं मानेसर में रहने के लिए, एक जगह आप जा रहे हैं सॉलिट्यूड में 89 में, जो भी बहुत अच्छी लोकेशन में है। प्राइसिंग यहाँ पे 1.6-1.65 की रीसेल है, हमने प्राइसिंग डिस्कस नहीं करी, बट इसका रेट इज 11,000 से 11,500। M3M फॉरेस्टिया का 13,000 है। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस गाइस, व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन गोइंग ऑन विद द एंड यूजर्स। ड्राइंग एंड डाइनिंग 22 into 22 12 हो गया आपका 260 स्क्वायर फीट का है। दिस इज 21 into 12, तो 240 स्क्वायर फीट है। 240 स्क्वायर फीट वर्सेस आप देख सकते हैं 260 स्क्वायर फीट। तो आपका 20 स्क्वायर फीट हॉल छोटा है M3M सॉलिट्यूड का, बट यहाँ पे the furniture placement and everything is on you.
द वे यू वांट टू प्लेस इट। आपका प्रॉपर यहाँ पे आ सकता है, यू कैन से जैसे 2D में आई विल शो इट टू यू। 2D में दे हैवंट शोन इट प्रॉपर्ली 8 सीटर टेबल, और ये दिस इज जस्ट प्योर मार्केटिंग। ये 2D इज नॉट राइट, बिकॉज आप 8 सीटर और ये 7 सीटर सेटअप लगा ही नहीं सकते हो अपने इस पे। सो इट्स अ 5 सीटर अरेंजमेंट विद 6 सीटर डाइनिंग टेबल जो 3D में दिखा रखा है। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू गाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस। आपका किचन इज अराउंड 90 स्क्वायर फीट, 7 फीट 6 इंचेस इंटू 12। आपका अराउंड 90 निकल के आता है। अंतिम सॉलिड का किचन देख लेते हैं, दिस इज अराउंड 11 इंटू 6, तो आपको 72-73 स्क्वायर फीट का किचन। दैट मीन्स आपका किचन 15 स्क्वायर फीट बड़ा है। सो येस, फॉर अ होम मेकर द किचन इज बिग एंड द बैल्कनी इज ऑल्सो गुड। यहाँ पे हमारे पास एंट्रेंस सॉलिट्यूड में एक ही बैल्कनी है, यहाँ पे फॉरेस्ट्री में देयर इज अ डिफरेंट बैल्कनी। ठीक है, अब हम रूम्स पे आ जाते हैं स्ट्रेट अवे। बैल्कनीज भी ऑलरेडी डिस्कस की, काफी बड़ी है। 320 स्क्वायर फीट बैल्कनी 1900 में इज अ वेरी बिग रेशियो। सो हम बेडरूम पे आ जाते हैं। मास्टर बेडरूम इज 11/13। आप यहाँ पे देख सकते हैं 11/13 का मास्टर बेडरूम इज समथिंग दैट इज नॉट स्मॉल। इसका 140 स्क्वायर फीट आया। लेट्स कम टू द मास्टर बेडरूम ऑफ एम3 सॉलिट्यूड। दिस इज ऑल्सो 140 स्क्वायर फीट। तो एक जगह आपको 13/11 का कमरा है ऐसे, एक जगह आपको 14/10 का कमरा है। तो मास्टर बेडरूम दोनों के सेम है। यहाँ 11/10 है विद एक्स्ट्रा वार्डरोब स्पेस ऑफ अराउंड लेट्स से 6 स्क्वायर फीट, तो 116 स्क्वायर फीट आ गया। ठीक है, ये आपका सेकंड बेडरूम आ गया अराउंड 11 फीट 8 इंचेस इंटू 11, तो आप बोल सकते हो अराउंड 130 स्क्वायर फीट आ गया। तो जो सेकंड बेडरूम है दैट इज 15 स्क्वायर फीट छोटा। मास्टर बेडरूम दोनों के सेम है। आप ये देख सकते हैं, जो एक रूम सेपरेट है आपका 15 स्क्वायर फीट का फर्क है। थर्ड बेडरूम इज 12/10 फीट 5 इंचेस, तो अराउंड 125 स्क्वायर फीट। इसका इज 11/12, तो ऑलमोस्ट सेम ही हुआ। आप बोल सकते हैं 130 स्क्वायर फीट वर्सेज 125 स्क्वायर फीट। एंड इसमें देयर इज अ एक्स्ट्रा वार्डरोब स्पेस ऑफ 8 स्क्वायर फीट। तो इन दी एंड आपको रूम्स भी ऑलमोस्ट सेम मिल रही हैं। एक ही जो थर्ड रूम है, जो कि आप बोल सकते हैं गेस्ट रूम या पेरेंट्स रूम, वो 15 स्क्वायर फीट छोटा है एज कम्पेयर टू द गेस्ट रूम ऑफ दिस। उसके अलावा दोनों रूम्स का साइज सेम है एमटीएम सॉलिट्यूड ऑफ फॉरेस्टिया में। हॉल इज ऑलमोस्ट सेम 240 से 250 स्क्वायर 260 स्क्वायर फीट, 20 स्क्वायर फीट छोटा है। किचन आपका जो है मेन फर्क आपका किचन में दैट इज 15 स्क्वायर फीट एंड बैल्कनीज छोटी है। उसके अलावा इफ यू गो एंड चेक आउट दिस फ्लोर प्लान एंड द वे इट इज, आपके वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम्स आपके इसमें छोटे हैं। एमटीएम सॉलिट्यूड में 7 फीट 6 फीट इंटू 5 6 फीट इंटू 5, काफी छोटे वॉशरूम्स हैं। इन्होंने थोड़े बड़े देने थे, बट दिस इज व्हाट इट इज। 30 स्क्वायर फीट है यहाँ पे, और ये भी आपका ऑलमोस्ट 35 स्क्वायर फीट है। एंड यहाँ पे एक आपका 0.5 स्पेस भी है दैट इज अराउंड 35 स्क्वायर फीट। इधर देयर इज नो स्पेस। आप समझ लो, आप इसको इस स्टडी को आप बड़ा करके किचन का एरिया बना सकते हैं अगर आपको उसके बराबर का किचन चाहिए। देयर इज अ फॉयर एरिया एज वेल एंड यू नो वॉशरूम्स आर गुड इनफ, बट देन in a better location you are almost getting a same usable area in M3 Solitude, which is a part of Deen Dayal, and in a much better price, and actually also part of Gurgaon. So that's your call to take. बाकी आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं if you want to। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं, I am impressed by 200 pieces of trees। उसके अलावा there is nothing that is proven, there is nothing जो होगा, and 200 trees भी you don't have the documentation होंगे नहीं होंगे। So thank you guys, take care।